Hello dear students, today we will start Unit 6 of Class 10th, Part B. Part A, Communication Skills, we have already covered. Now we will start Part B. In this chapter, in this unit, we are going to cover networking fundamentals, working with accessibility options, introduction to instant messaging, using Google Hangouts, creating and publishing web pages, blog, using offline blog editors, online transactions, internet security. So, we are discussing web applications. Basically, it is related to internet. Earlier, we used to work only on desktop applications that were accessible to a single computer. Desktop applications can be hosted on all the computers but not on the network or internet. Web applications came into existence to overcome these shortcomings. A web application refers to an application which can be accessed through a web browser such as Internet Explorer or Mozilla Firefox. In other words, web applications are those applications that are only accessible using internet. These days, web applications are not only created to be accessible on computers but also on smart devices such as टैबलेट स्मार्टफोन्स एक्सेट्रा. इसमें ये कह रहे हैं कि हमारा जो वेब ब्राउज़र है, आपको पता है सबको कि व्हाट इज़ अ वेब ब्राउज़र में इंटरनेट एक्सप्लोरर है या गूगल क्रोम है या मोजिला फायरफॉक्स है. हम क्यों यूज़ करते हैं ये वेब ब्राउज़र? टू एक्सेस द इंटरनेट. बेसिकली पहले जब इंटरनेट नहीं था तो हम डेस्कटॉप साइट पे वर्क करते थे, डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे वर्क करते थे. बट जब इंटरनेट और नेटवर्क का डेवलपमेंट हुआ तब हमने ये वेब ब्राउज़र यूज़ करना स्टार्ट किया और इसी को हम यहाँ पे बोल रहे हैं वेब एप्लीकेशन, जो कि हम इंटरनेट पे यूज़ करते हैं, वो एप्लीकेशंस विच वी आर यूजिंग ऑन वेब. After a web application is developed, it needs to be stored in a particular location in a network. Web applications are generally hosted in client-server networking environment. A client-server networking environment क्या होता है? Client-server means we are using client-server networking where we all are clients and we are getting information from the server. When network is there and when 10 or 20 systems are connected with each other, so out of 20 systems, one computer work as a server and others are clients. So this is client server networking. The computers which send requests to access web application are known as client computer or machines. On the other hand, the computer which fulfills the request of client is known as server. तो यहाँ से जब हम कोई भी रिक्वेस्ट हमें चाहिए एक्सेस करने के लिए तो हम वो क्लाइंट कंप्यूटर पे वर्क कर रहे होते हैं और जहाँ से हमें वो रिक्वेस्ट मिलती है, जहाँ से हमें डेटा मिल रहा है, वो सर्वर है. बेसिकली द सर्वर कैन बी रिगार्डेड एज अ स्टोर हाउस ऑफ वेब एप्लीकेशन. तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि सर्वर जो है वो एक स्टोर हाउस है वेब एप्लीकेशंस का एंड अदर इम्पॉर्टेंट डेटा एक्सेसिबल यूजिंग इंटरनेट. Web application also help the companies in reaching out to prospective clients and conducting business online. A very good example of such a scenario is an online shopping website where you can perform transactions related to buying and selling a product. तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं. Buying and selling of a product is a best example. In this unit you will learn about networking fundamentals. तो हम नेटवर्किंग स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली व्हाट इज अ नेटवर्क? नेटवर्क इज कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स विच आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर. जब बहुत सारे कंप्यूटर को हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं दैट इज कॉल्ड एज नेटवर्क. और उसका बेसिक रीजन क्या होता है? वी वांट टू शेयर डेटा. द बेसिक यूज ऑफ नेटवर्किंग इज द बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग इज communication. We can communicate with each other. Data sharing, we can share data with each other. Resource sharing means we can share any resource like printer. Now suppose if we are on a network, then one printer can be shared with all the 10 clients. So this is resource sharing. Internet access sharing, data security, performance enhancement. So these are the various benefits of networking. So we can easily
communicate with each other through networking with a proper network security. But it also involves some disadvantages also. अब क्या disadvantage है networking का? तो for one is setup cost. To set up this networking, a large cost is there, and if we want to do networking, then we require a particular hardware devices. For that networking devices are there, cables are there. So बजट जो है वो थोड़ा सा हाई रहता है इसमें. एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट मीन्स सपोज लार्ज कंपनीज ऑफन नीड टू हायर डेडिकेटेड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर टीम्स फॉर मैनेजिंग. अब ये नेटवर्क जब हम क्रिएट करते हैं तो ये नॉर्मल पर्सन्स नहीं करते हैं. इसके लिए एक पर्टिकुलर टीम होती है जो कि नेटवर्किंग एस्टेब्लिश करने आती है और वो पूरा हमें सेटअप करके देती है. तो उसके लिए वो कॉस्ट भी एडिशनल रहती है. अनडिजायरेबल शेयरिंग मीन्स पीपल, जो लोग हैं कभी कभी ऐसा डेटा शेयर कर देते हैं इंटरनेट पे जो कि बहुत हार्मफुल होता है. जैसे वायरस है, अगर एक सिस्टम से चला गया तो पूरे नेटवर्किंग में वो फैल जाएगा और वो इफेक्ट करेगा. अनडिजायरेबल बिहेवियर, अब बहुत सारे लोग इसका मिसयूज भी करते हैं. बहुत सारे क्राइम्स भी हो रहे हैं, साइबर क्राइम्स भी हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट नेटवर्किंग. डेटा सिक्योरिटी, अब डेटा सिक्योर्ड उतना है कि नहीं, दैट इज अ वेरी बिग पॉइंट हियर. तो हैकर्स क्या करते हैं, आपका यूजर पासवर्ड को टारगेट बना करके उसको मिसयूज करते हैं और अनऑथोराइज्ड एक्सेस करते हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन द टेक्नोलॉजी, टोपोलॉजी एंड नेटवर्क शेयरिंग प्रोटोकॉल्स, अ नेटवर्क कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स. तो नेटवर्किंग के टाइप्स यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किए हैं जो कि हम आगे पढ़ रहे हैं. दैट आर कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क. अब व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क? तो देयर आर 5 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क: सर्वर, क्लाइंट, चैनल, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इंटरफेस. सर्वर क्या है? सर्वर मैंने आपको बताया, जहां से हमें मेन इंफॉर्मेशन मिल रही है वो सर्वर है. और क्लाइंट क्या है? जो अदर सिस्टम्स हैं दैट आर कनेक्टेड टू सर्वर आर क्लाइंट्स. चैनल्स क्या है? चैनल्स आर सर्किट्स और पाथवे कनेक्टिंग नेटवर्क थ्रू विच डिफरेंट इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स शेयर इंफॉर्मेशन. एंड व्हाट आर नेटवर्क चैनल्स? और ये जो चैनल्स हैं दैट आर गाइडेड और लाइन बेस्ड वायरलेस मीडिया. और हाँ, तो ये गाइडेड मीडिया होता है और ट्रांसमिशन मीडिया हम इसको बोल सकते हैं. चैनल्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसमिशन मीडिया. मतलब डेटा जो है वो किस फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है. एक होता है गाइडेड फॉर्म जिसमें वायर्स यूज होते हैं, और एक अनगाइडेड फॉर्म होता है जो कि वायरलेस होता है. गाइडेड एंड अनगाइडेड. तो रेडिएटेड और वायरलेस मीडिया और वायर और वायरलेस मीडिया. नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज द ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑन सर्वर. इंटरफेस डिवाइस कनेक्ट सर्वर एंड क्लाइंट्स. दीज इंक्लूड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स एंड मॉडेम. अब इसमें कुछ डिवाइसेस यूज होती हैं जैसे मॉडेम है, एनआईसी है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. तो ये कुछ कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क हैं. इन्होंने 5 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स बताए हैं. फिर उसके बाद जिस रेट से डेटा ट्रांसफर होता है उसको हम बोलते हैं बैंडविड्थ. द ट्रांसमिशन रेट और बैंडविड्थ ऑफ अ ट्रांसमिशन चैनल डिफाइंस द स्पीड विद विच डेटा कैन ट्रैवल थ्रू द चैनल. इट इज ऑफन मेजर्ड इन बिट्स पर सेकेंड. इसको कैसे मेजर किया जाता है? बिट्स पर सेकेंड में मेजर किया जाता है. On the basis of the direction of transmission of information, a channel can be simplex, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स. डेटा कैसा ट्रांसफर होगा? अगर एक ही डायरेक्शन में हो रहा है तो वो सिंप्लेक्स कहलाएगा. अगर वो बोथ द डायरेक्शन में हो रहा है बट सीरियली हो रहा है, मतलब सीक्वेंशियली हो रहा है, तो फिर वो हाफ डुप्लेक्स कहलाएगा. और जब पूरा का पूरा डेटा एक साथ दोनों डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो वो फुल डुप्लेक्स कहलाता है. तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसमिशन रेट. अब कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क के बाद टाइप्स ऑफ नेटवर्क आता है. तो ये आप बहुत छोटी क्लास से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेटवर्क. तो लोग इसमें 3 टाइप्स के नेटवर्क होते हैं बेसिकली. एक होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि जिसको हम लोकलाइज नेटवर्क भी बोलते हैं. लैन हेल्प्स इन रिसोर्स शेयरिंग, फॉर एग्जांपल डेटा, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. जब एक स्मॉल एरिया में हम नेटवर्क एस्टेब्लिश करते हैं तो वो लैन, उसको हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क. नेक्स्ट होता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मीन्स मैन, MAN, मैन.
मेट्रोपॉलिटन एरिया कवर्स लार्ज एरिया लाइक इन अ सिटी, तो इसकी जो रेंज होती है वो मोर देन 10 किलोमीटर्स होती है, 10 किलोमीटर्स एंड 100 किलोमीटर्स। तो ये एक लार्ज एरिया कवर करता है, इसका जो डिस्टेंस होता है वो 10 किलोमीटर्स टू 100 किलोमीटर्स होता है, और उसकी स्पीड होती है 34 Mbps टू 155 Mbps। एक्सपेंसिव इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग अ मैन। अगर हमें मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए एक्सपेंसिव इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। थर्ड होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क, WAN। WAN is a type of network used to cover a wide geographical area or region. It links different metropolitan cities, countries, and national boundaries. It may be located entirely within a state or country, or it may be interconnected around the world. The transfer rate of WAN is up to 155 Mbps or less, as it often uses public telephone networks or leased transmission lines. So these are the types of network, and the next topic, next content we will cover in our next class. Okay students, thank you so much.